بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. عظیم محفل السلام علیکم. میں عبد القادر شیخانی ممبر اورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن اور ممبر کراچی چیمبر آف کامرس آج آپ سب کو اورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن میں اپنی طرف سے اور ہمارے انتہائی قابل صدر محترم اور شفیق بڑے بھائی معزز جناب عبداللہ بٹرا صاحب کی طرف سے اور ہمارے دیگر عہدیداران اور تاجران نمائندگان کی طرف سے جس میں سینئر نائب صدر زبیر الدین صاحب، جنرل سیکرٹری نومی شہباز خان صاحب، جوائنٹ سیکرٹری عرفان قریشی صاحب جو کہ CEO سفیر ہاسپٹل بھی ہیں، آفس سیکرٹری امجد قریشی صاحب، عامر احمد سیکرٹری شعبہ نشر و اشاعت، رضی حیدر رضوی صاحب نائب صدر اورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن، فیض الحسن نائب صدر، فرحان بخش صاحب نائب صدر، اظہار انصاری صاحب، حبیب بھائی، ٹوڈو بھائی اور ہمارے دیگر معزز مہمان گرامی جس میں ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر رضا عباس رضوی صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ سر ایڈمنسٹریٹر ہمارے اورنگی ویسٹ کے شبیر الحسن صاحب ہیں، اظہار انصاری صاحب ہیں. ان سب کی طرف سے میں ہمارے معزز مہمان گرامی جناب DIGP ٹریفک احمد نواز چیمہ صاحب اور ان کی ٹیم جس میں جناب نور الحق رین صاحب SSP ٹریفک ویسٹ، جناب سعید احمد علانی صاحب DSP ٹریفک آپریشن اور تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور DIG صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن کو اور ہم کو آگے عزت بخشی ہے. محترم DIG صاحب، اورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن کو یہ انفرادی اور اعزازی مقام حاصل ہے کہ وہ نہ صرف کراچی کی یا پاکستان کی بلکہ پورے بر اعظم ایشیا کی ایک بڑی آبادی ہونے کا اعزاز رکھتے ہوئے اپنے تاجران کی نمائندگی کرتی ہے. آپ جیسے افسران کے تعاون سے پولیس اور عوام کا گیپ کم کرتے ہوئے کراچی شہر کے حوالے سے دن بہ دن بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں. مگر پھر بھی میں آپ کی توجہ کچھ بنیادی مسائل کی طرف دلانا چاہوں گا. اکثر اوقات اذیت کا شکار رہتے ہیں. اس میں سر مسائل کی فہرست کی اگر بات کی جائے تو وہ نو ڈاؤٹ بہت لمبی ہے، مگر کچھ بنیادی مسائل جس میں سر ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں اس طور پر دیکھنے میں آتی ہے. اس کے علاوہ سر ون وے ٹریفک جو ون وے کی وائلیشن ہوتی ہے اس میں کافی مسائل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کار لفٹنگ کے کچھ ایشوز آتے ہیں بزنس ایریاز سے، اس میں بھی ہم آپ کی کچھ رہنمائی چاہیں گے سر. اکثر اوقات تو پارکنگ اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے، اگر اویلیبل ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے کوئی پراپر اس طرح سے ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ ان کو آگاہی ہو سکے. اس میں کچھ ہمیں ٹریننگ کی یا مے بی پاسبل پنشمنٹ پینلٹیز کی بھی ہمیں اکثر ضرورت ہوگی، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی. بسز جو ریس لگا رہی ہوتی ہے اپنے پیسنجرس کو ٹیک کرنے کے لیے، اس میں سر ہمیں اکثر اوقات ہیوی لاسز آف ہیومن لائف دیکھنے میں آیا ہے. اکثر اوقات یہ بسز میں وداؤٹ فٹنس سرٹیفکیٹ کے سر روڈ موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. روڈ کراسنگ کے جس میں ہمارے پاس پیڈیٹیرین برج کی لیپس ہونے کی وجہ سے تمام افسران کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ان کے ذریعے حل کرایا جائے. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو اس کی بیجا برائیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی اچھائیوں کو کوئی نہیں دیکھتا. آج ہم نے یہ تقریب جو منعقد کی ہے یہ ان ہیروز کے لیے کی ہے، ان نوجوانوں کے لیے کی جو اپنی جان پہ کھیل کر اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں. اس سلسلے میں رفیق صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں 2 ڈکیتوں کو پکڑ کے ان سے رقم برآمد کی اور کافی تعداد میں رقم برآمد کرنے کے بعد وہ پولیس کے حوالے کی. اس سلسلے میں ہم نے یہ حساب درج کی کہ لینا چاہتے ہیں
इन्होंने हमारी बात सबका हाथ आया हुआ पूरा। हमारे एसओ हैं, हमारे एसओ मोमिनाबाद, एसओ पीराबाद, एसओ नबी टाउन, हमारे इन एरियाज के अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और हम ये समझते हैं कि इनकी मौजूदगी में हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। और पुराना रास्ता कहीं ट्रैफिक को जाम हो जाता है तो इनके आर के हमारे उस पर मौजूद रहते हैं और वो हमें फौरन काबू फराहम करते हैं। मैं औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का जनरल और मैं मोमिनाबाद मार्केट का भी औरंगी टाउन वो इलाका था कराची का जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से जिस तरह हमारे जो DIG साहब हैं उन्होंने जिस तरह यहाँ पे तैनात किए हैं, हमारी 5 नंबर अभी चौरंगी मेट्रो में दीगर इलाकों में जो तैनात हुए ट्रैफिक पुलिस एहसास, ये पिछले 40-50 सालों में कोई तस्वर नहीं था इनकी टाउन्स के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एग्जाम शाहिद अंगोड़ा साहब इन्होंने भी बहुत अच्छा मशवरा दिया कि धूप में जो हमारे सिपाही खड़े होते हैं, कभी किसी ने इनके लिए सोचा नहीं, हमने इनके लिए अम्ब्रेला का इंतजाम किया है कि अम्ब्रेला जो है हमारे सिपाही हमने से हमारे भाई हैं, तो हमने इनके लिए अम्ब्रेला का इंतजाम किया ताकि ये धूप में जो खड़े होते हैं, गर्मी की शिद्दत इतनी होती है, एक कराची में एक अच्छा परसेप्शन जाए। तो देखें ये काम आगाज औरंगी टाउन से हुआ है और इंशाल्लाह पूरे शहर में ये काम होगा। जितनी ये ताजिर तंजीमें इस पर काम करेंगी जाहिर सी बात एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। कि हमारे सिपाही जो बेचारे धूप में खड़े होते हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी के लिए या अम्ब्रेला का इंतजाम किया जाए। कि अमूमन लोग पुलिस से शाकी रहते हैं, उनसे शिकायत रहती है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हमें अपने आप को भी एजुकेट करना पड़ेगा, कुछ हम लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसलिए कि जो सिपाही बेचारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारा दिन खड़ा रहता है, तो बशर होने के नाते उससे भी कुछ कभी कोताही हो सकती है, कोई खामियाँ हो सकती है, वो भी चिड़चिड़ा हो सकता है। लेकिन हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से कसम खा के निकलते कि मानना नहीं है किसी की बात, वो वायलेशन करते हैं, वो बेचारा सिटी बजाता रह जाता है, हाथ देता रह जाता है और लोग जो है ट्रैफिक को माफ बना देते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो ट्रैफिक पुलिस के साथी हैं, ये कोई एलियंस नहीं है, ना ही जापान अमेरिका से आए हुए मखलूक है, ये हमारी आपके भाई हैं। तो हमें चाहिए कि खुद हम लोग अपने आप को भी एजुकेट करें, कानून का एहतराम करें और इनके साथ ताउन करें। यहाँ के जो अवामी मसाइल है हमारे सारे औरंगी और सारे कदाबी के सुबह के अवकाश और शाम के अवकाश जो है बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। हमारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं, ये औरंगी बहुत कच्ची आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम करते हैं कि आप जो है अपने ट्रैफिक के जो सिपाही हैं या अफरान हैं वो कुछ तादाद आप जो है बढ़वाएं। गरीब लोग जब काम से वापस आते हैं तो ये मेट्रो जो बनारस के पुल से उतरते हैं तो 4:45 पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ये रश होता है और तकरीबन समझ जाए कि काफ़ी देर तक जो है ये पुल के ऊपर तक जो है लाइन लग जाता है। उसके बाद हमारे ये 5 नंबर औरंगी टाउन में जो है आगे हमारी DMC ऑफिस भी, वहाँ पर भी जाने में बहुत से मसाइल है। इसी तरह हमारे डिस्को मोड़ औरंगी टाउन में वहाँ पर भी जो है बहुत मसाइल होते हैं। इसी तरह हमारे मार्केटों में भी बहुत सारे मसाइल हैं। एसोसिएशन के लोग काबिल तहसीन है, काबिल सतराइश है कि आज इन्होंने ये संग बुनियाद रख दी औरंगी टाउन में ये बेहतर काम है। वेल्थ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन, इनको अपने मुकम्मल ताउन की अपनी कहानी कराता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी कुछ दिन पहले कुछ बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई इनके साथ और मैं चाहता हूँ कि जिन जगहों पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इस किस्म के मामला होते हैं, वहाँ से क्राइम कम होता है। यहाँ के लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये इशूज़ हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें उन लोगों को मैसर नहीं है जो दरअसल किसी भी कौम का हक होता है। तो एक क्लब की जगह हमने निकाली है जो बड़ी मशहूर है और टाउन प्राइम लोकेशन पे है। वहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक क्लब बनाएं और ये क्लब के नाम से, जिसके लिए हमारी वो हुई है एसोसिएशन से कि अगर वो उसको टेकअप करते हैं तो मेरी मुर्तज़ाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उनसे डिस्कशन हुई है। प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ हम उस पर काम करने के लिए जा रहे हैं। ज़मीन प्रोवाइड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम करेंगे और उसको आबाद ये लोग करेंगे। औरंगी टाउन और उससे मुलाका आबादियों के लोगों को जगह में असर आएगी ऐसी जो हेल्दी एक्टिविटी हो। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसे इक़दाम जरूर करने होंगे औरंगी के, जिससे वो दूसरी चीज़ों से निकल के मज़बूत सरगर्मियों की तरफ
ट्रैफिक पुलिस हमारी वो पुलिस है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और उसे पजीराई वो नहीं मिलती जिससे वो मुस्तैदी है। तो यकीनन ये जो अमल है इनका बहुत अच्छा है। डीएमसी वेस्ट की तरफ से जो भी मुमकिनात होंगे, ताउन होगा, हम उसके लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ उसी तरह से ताउन करेंगे। और DIG साहब की वहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं। तो जब मैं सिफारिश करना चाहूँगा कि अगर हम दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, एक हम रॉन्ग साइड पे वन पे कंट्रोल कर लें और दूसरा हम इंक्रोचमेंट पे कंट्रोल कर लें, तो ये हमारे मोर देन 50 to 60% ट्रैफिक के मसाइल का जो है वो हल हो जाता है। रॉन्ग साइड का जो पॉलिसी होती है, जो किरदार होता है, उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। ये सारा अमल दखल जो है वो हमारी आवाम का होता है, जो पुलिस खड़ा होने के बावजूद भी रॉन्ग साइड आते हैं और अपना वक्त बचाने के लिए वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि अब वो एक्चुअली वो उसका वक्त अच्छी तरह ज़ाया हो रहा है, क्योंकि अपने साथ दूसरों का वक्त ज़ाया करने के रॉन्ग साइड करते हैं। जैसे एक फैमिली में वालिद का दर्जा होता है और वो वालिद अपने तमाम बच्चों की सरपरस्ती करता है, अहले खाना की सरपरस्ती करता है, तो हमारे मोहतरम शफीक बड़े भाई अब्दुल्ला भट्टा साहब हमेशा हमारी इसी तरीके से अपना दस्ते शफ़क़त रखते हुए हमारी इसी तरह रहनुमाई करते हैं, हमारी इसी तरह क़यादत करते हैं। उनकी क़यादत में और अपनी औरंगी ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस हम खिदमत का मुकम्मल हक तो नहीं अदा कर सकते, मगर एक छोटा सा अदना सा तोहफा हम पेश करने जा रहे हैं। कुछ ट्रेडर एसोसिएशन जो है वो मेरे ऑफिस में आई हैं, हमने उसकी तरतीब एक सेट की हुई है कि ट्रेडर एसोसिएशन आती है और अपने नुमाइंदों को भी साथ लेके आती है, हमारे अफसरान होते हैं, और फिर हम बैठ के मिल के उनके पहले मसाइल सुनते हैं, फिर अपने जो अफसरान हैं उनका व्यू पॉइंट सुनते हैं और उसके बाद उनके हल के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करते हैं। और रखनी को ये एजाज़ हासिल रहेगा कि किसी भी ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ ये मेरा पहला विजिट है और यहाँ से मैंने बत्रा साहब ने जिस मोहब्बत से बुलाया था तो वो मैं ना नहीं कर सका, तो मैं बड़ा मशहूर हूँ बत्रा साहब का। ट्रैफिक के हवाले से मसाइल की निशानदेही की, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, और हमें इन मसाइल का पूरी तरह इदराक है और जो इस तरह की जब मीटिंग करते हैं उसका डेफिनेटली एक ये फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि हमें एक फील मिल जाता है कि इस इलाके में क्या मसले हैं। इंडिविजुअली उन मसाइल का हल जो है वो इस तरह की तकरीब से नहीं हो सकता, वो हमारी पर्सनल मीटिंग के ज़रिए हो सकता है। तो हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है, उससे कि काफ़ी मस्बत रिजल्ट निकल रहे हैं। जो एसोसिएशन है उसको भी ये समझ आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे इख्तियारात क्या हैं, और जो एक ये गलतफहमी होती है कि ये तमाम मसाइल क्योंकि रोड पे हैं तो ट्रैफिक वाले नहीं हल करते, तो हम रहनुमाई भी कर देते हैं कि इन मसाइल के लिए आपने इन इदारों के पास रिक्वेस्ट करनी है और जो ट्रैफिक पुलिस के रिलेटेड मसाइल हैं उनको हमने हल करना है। तो कम से कम एक ये होता है कि दोनों तरफ से, जब आपकी तरफ से उन इदारों के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर हमारी तरफ से भी उनको रिक्वेस्ट आएगी, तो जो काम आप इंडिविजुअली कोशिश कर रहे होंगे उसको हल करने की, जब हमारा साथ में कॉपरेशन होगा तो उम्मीद ये होती है कि वो काम जल्द अज जल्द हो जाएगा। बत्रा साहब से ये रिक्वेस्ट होगी, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से आप एक एक एरिया स्पेसिफिक जो है वो अपनी एसोसिएशन के उस लोकल एरिया के मेंबर्स को लेके आप हमारे पास आएँ, हम उसमें से हल इंशाल्लाह आपके ताउन से उसके लिए हल निकालेंगे। पुलिस वालों के मुखालबत में बहुत लोग काम करते हैं, ये भी इंसान है, जवान है, मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होते हैं, इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो औरंगी टाउन के एसओ, औरंगी टाउन के एसओ आर के, और मुख्तलिफ मोमिनाबाद के एसओ, मोमिनाबाद के आर के, पीराबाद के एसओ, पीराबाद के आर के, जो जिस एरिया से मेरी
आना जाना लगा रहता है। मैं देखता हूँ ये बड़ी जागरूकता और मेहनत से काम करता है। पुलिस ने और हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने आपस में मिलकर जो ट्रेड वर्ल्ड जो हमारे सिविल सोसाइटी के जो मसाइल हैं और हमारे ट्रेडर्स के हमारे जो शॉपकीपर्स हैं उनके यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल हैं उन तमाम चीज़ों में हमने डिस्कशन की।